Good morning, student. Today we will start with our chapter number 4, more about the keyboard. Last period you have learned about how does the computer work. Now this time we will learn more about the keyboard. At the end of the chapter, student will be able to identify and describe caps lock keys, shift key, home and end key, page down keys, window keys or win keys. Children, you have already learned that a keyboard is an input device. A small button on the keyboard are called keys. A keyboard has different types of keys. A standard keyboard has 104 keys. You can type the character by pressing the keys on the keyboard and the same will appear on the monitor. There are different types of keys on the keyboard. You have learnt about some keys earlier. Now this is class activity. Next page. Let us learn some more keys on a keyboard. Cap lock key. The caps lock key is used to type capital letters in capital. First, start typing using spacebar key in between the two words. The letters will appear in small letter. Second, press the cap lock once. The caps lock light will turn on. 4. Start typing and see the change. The letter will now appear in capitals. 5. Now press the cap lock once again. 6. The cap lock light will turn off. 7. Continue to type. The letter will now appear in small letters. Shift key. There are two shift keys present on the keyboard. Both of them have some purpose. We use shift key along with the other key. There are some keys with two symbols on them such as @2 or 4 7 and 7. When you press @2 button, you will get 2 on the monitor. To type the upper symbol of the key, first press and hold the shift key. Second, press the key with the two symbols. You will get the upper symbol on the monitor. You can see here this key plus this key is pressed and this we got. Third, release both the keys together. We also use the shift key to type capital letters. Without shift key, A is like that. When we press shift key, A is like this. Now this is activity in lab. When we will go in the lab, we will do this activity. Now here remember, the cap lock key is used when we type words or sentences in capital letters. This way we do not have to keep the shift key pressed when we type letter. We use the shift key along with the alphabet or letter key when we have to type only one or two letters in capital. Home and end key. Home key is used to move the cursor to the beginning of the line. End key is used to move the cursor to the end of the line. Page up or page down keys. We use these keys to move the page up or down. Windows key or Win key. Win key is used to open the start menu.
नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। अभी अपने को कीबोर्ड के बारे में सीखने का है। कंप्यूटर तो तुमने देखा है, कंप्यूटर पे कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी तुमने पढ़ा है। अभी देखो, ये तो कीबोर्ड रहता है, ये तुमको पता है। इसके ऊपर नंबर रहते हैं, तो वो बटन्स दबाए तो वो अपने को नंबर का बटन दबाए तो मॉनिटर के ऊपर नंबर्स दिखते। अल्फ़ाबेट्स दबाए तो मॉनिटर के ऊपर अल्फ़ाबेट्स दिखाते हैं। अभी ये कीबोर्ड पे कितनी कीज़ रहते हैं, ये छोटे छोटे बटन्स रहते हैं, उसको बोलते हैं कीज़। इस छोटे छोटे बटन्स को क्या बोलते हैं? कीज़। और ये कीबोर्ड पे 104 कीज़ रहते हैं, 104 कीज़। एक एक की का अलग अलग। अभी यहाँ पे जैसे क्यू है, WER, एक एक की के ऊपर एक एक लिखा हुआ है। वो जो की प्रेस करेंगे वही अपने को मॉनिटर के ऊपर दिखता है। अभी वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ है, वो पढ़े हैं तुमने। लेटर कीज़, नंबर कीज़, प्लस माइनस, ये एरो, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ये ऐसे कीज़ रहते। अभी अपने को सीखने का है कैप लॉक कीज़। कैप लॉक कीज़ क्या है कि ये कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी देखो, तुम पहले अभी अपने को पढ़ने का है कैप लॉक कीज़ के बारे में। कैप लॉक कीज़ कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए अपन देखें, पहले स्टेप है कि अपन स्पेस बार वर्ड के बिटवीन डालने का है। और अपने को क्या आता है कि लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अपन वो कीज़ दबाए तो स्मॉल लेटर्स आते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स। फिर अपन ने कैप लॉक अपनी बटन की दबाई एक बार, तो कैप लॉक लाइट ऑन होता है और अपने को समझता है कि कैप लॉक की चालू है। अभी अपन टाइपिंग करेंगे तो फिर वो सब लेटर्स कैपिटल लेटर्स आते हैं। बाद में तुम ऐसा फिर से कैप लॉक की प्रेस करो तो क्या होता है, वो जो लाइट चालू था वो बंद हो जाता है। और अब फिर अपन अगर टाइपिंग करेंगे तो स्मॉल लेटर्स आते हैं। यानी जब अपने को कैपिटल लेटर्स करने का है तो अपने को कैप लॉक की ऑन करना पड़ता है, तब अपने को कैपिटल लेटर्स आते। कैप लॉक की बंद किया तो स्मॉल लेटर्स आते। अभी है शिफ्ट की। शिफ्ट की कीबोर्ड पे रहती है, टू कीज़ रहती है शिफ्ट की। दोनों का भी यूज़ उस एक ही पर्पज़ के लिए किया जाता है। अभी देखो, कुछ कीज़ के ऊपर 2 साइंस रहते हैं, जैसे @ 2 एंड 7। तो जब अपन सिंपली बिना शिफ्ट की दबाए तो अपने को जो नंबर है वो आता है। लेकिन शिफ्ट की दबाने के साथ में अगर ये की दबाए तो अपने को जो ऊपर जो रहता है, ऊपर जो रहते हैं साइन, वो अपने को अपने कीबोर्ड के ऊपर दिखता है। अभी यहाँ पे देखो, पहले शिफ्ट की दबाई, बाद में ये @ और 2 का बटन दबाया, तो दोनों एक साथ दबाए तो ऊपर वाला जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अभी ये अपन ने शिफ्ट की रिलीज़ कर दिया तो अपने को नंबर आता है। और शिफ्ट की और काय के लिए यूज़ किया जाता है, जब अपने को कैपिटल लेटर दबाने का है, कैपिटल लेटर डालने का है, तो अपने को शिफ्ट दबा के कैपिटल लेटर दबाए तो कैपिटल लेटर आ जाता है। ये लैब में की एक्टिविटी है, वो अपन लैब में करेंगे। होम एंड एन की। अभी ये देखो, होम एंड एन की दिख रही है यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर। तो ये होम की काय के लिए यूज़ किया जाता है कि जो कर्सर रहता है वो लाइन स्टार्ट करने के लिए रहता है, तो होम की दबाए तो कर्सर की लाइन स्टार्ट होती है। और एंड की का वो अपना जो कर्सर है वो अपनी लाइन को एंड करता है। अभी
वो पेज अप और पेज डाउन कीज़ है। ये देखो, पेज अप पेज डाउन कीज़, ये काय के लिए यूज़, ये काय के लिए दबाते हैं? जब अपने को पेज ऊपर लेने का है तो अप का करने का की यूज़ करने का, जब नीचे लेने का है तब डाउन की। आया समझ में? नेक्स्ट, विंडो की और विन की। विन की ये ऐसे रहते हैं, ये अपने को ओपन करने के लिए, मेनू स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है ये कीज़। ओवर।